رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بڑے جرم بتائے۔ پہلا جرم بدکاری، عیاشی، فحاشی۔ نتیجہ ایسی بیماریاں کہ جو آباء و اجداد نے سنی ہی نہیں تھی، جن کی علاج اور تشخیص کے لیے ہمارے پاس کوئی کٹس نہیں ہیں، اور جو ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ناپ تول میں کمی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ لیتے ہوئے پیمانے اور دیتے ہوئے اور، رمضان میں اور غیر رمضان میں اور۔ حضرات اگر یہ کیفیت ہے آپ اور مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ اللہ قحط سالی، قحط سالی، اور اس کا نتیجہ 3 شکلوں میں۔ پہلی چیز، اللہ بجٹ ان بیلنس کر دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، رہن سہن، اور حاکم وقت ان پہ شکنجے اور ٹائٹ کر دیتا ہے، سختیاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرات آئیے، اس سے بڑا شکنجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی دکان کا تالا کھولنے کو بےتاب تھے کہ نہیں؟ اور شاید آنے والے دنوں میں بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ آگے بڑھیے، جو غریب لوگوں کا حق، یہ ایک جرم ہے۔ جہاں امیر غریب کا حق مارے گا، وہاں تیرے رب نے رحمت کی برکھا روک دینی ہے، اور بارشیں عذاب کی شکل میں، وہ جانوروں کا حق ان کو دلوایا جائے گا۔ اگر وہ آئیں گی بھی تو عذاب اور سیلاب کی شکل میں، سزا کی شکل میں۔ اور جس قوم میں اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے توڑنے کا جرم پایا جائے، اللہ دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سازش ہے اور دشمن مسلط ہے اور ون ورڈ آرڈر ہے، تو پیچھے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے، آپ نے اور میں نے نماز، زکوٰۃ، جہاد، روزہ، حج، عبادات، مناجات، اللہ کے ساتھ عقائد، ہر چیز کو ہم نے توڑا ہے۔ اور 5واں جرم، جس قوم کی عدالتوں کے ججز، قاضی، جہاں کی عدالتیں، کورٹ کچہریاں، ان کے فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کے آئیں گے، اس آسمانی دستور کے ہوتے ہوئے دنیاوی انسانوں کے بنے ہوئے انسانوں کے لیے قانون سے آئیں گے۔ انسان کا قانون تو یہ ہے کہ وہ 1 ایکڑ زمین کے لیے، آپ کو پتہ ہے آپ کے قریب ساتھ والے ضلع میں 1 ایکڑ کے لیے 22 سال کی تاریخ میں 33 لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ دائیں بائیں نظر رکھتے ہیں، صرف 1 ایکڑ 22 سالہ تاریخ میں، 22 سال پہلے یہ ایکڑ خریدا گیا تھا اور اس پہ اختلاف ہوا۔ اس وقت تک 33 لوگ، حضرات کورٹ نہیں ہے، کچہری نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، فوج نہیں ہے، نظام اور سسٹم نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سب ہے، لیکن وہاں فیصلے کرنے کے لیے وہ جو کتاب ہے، جو پڑھی گئی ہے، جو پڑھ کر کے یہ بھائی اس کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے۔ اور جب یہ تھا تو مدینے میں ایک ہی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک سزا دی گئی، پھر دوبارہ مدینہ میں دہشت گردی کا واقعہ نظر نہیں آیا تھا۔ حضرات سزا، اس کے بعد ہے وبا۔ اگر وبا ہے تو اس کے اوپر ہمارے کافی سارے لیکچرز، علماء، اہل علم، ڈاکٹرز، اطباء، انہوں نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے کہ وبا کے دنوں میں آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے، احتیاط کیا کرنی ہے، اس کے اندر آپ کو کس طرح کا سٹیپ لینا ہے۔ اور اگر یہ ابتلا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور حیات کی درمیانی زندگی اور یہ کشمکش تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ زندگی پرسکون تھی تو تم کیسے تھے، صحت تھی تو کیسے تھے، پڑھا کرتے تھے کبھی حدیث اور بیان کرتے تھے 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب بیماری آنے سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت جانو، مگر احساس نہیں ہوتا تھا، ہم سمجھتے تھے شاید۔ حضرات، مصروف ہو جانے سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو،
मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो। ये सब जानते हुए भी हम नहीं जान पाए। तो इब्तिला है, आजमाइश है। आजमाइश में पूरा उतरने के लिए अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाना, आजिज़ी करना, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, कोरोना इनमें से किसी भी शक्ल में, मरना तो है हमने किसी न किसी शक्ल में। अल्लाह से हुस्न खात्मा मांगे, अल्लाह से हुस्न खात्मा मांगे, अच्छी मौत मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मौत अकीदा है और इस अकीदे पे कायम रहें। घबराने बिलबिलाने की लोगों के सामने जरूरत नहीं। आंसू बहाना है तो रब के सामने, गिड़गिड़ाना है तो रब के सामने। इब्तिला और आजमाइश है रब की तरफ से, तो इंशाअल्लाह। मेरे महबूब ने नहीं कहा था रब्बि आइन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाह ये तेरी तरफ से आजमाइश है, मौत के मुंह में हूँ, सकरातुल मौत से मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। तो हमें अपने रब के हुजूर जाना है। इन 5 पहलुओं को मद्देनज़र रखना है जो जिक्र किए गए। अगर ये दुनिया की तरफ से साजिश है तो फिर भी, ये बीमारी है तो फिर भी, ये सज़ा है तो तब भी, वबा है तो फिर भी, और इब्तिला है तो फिर भी। उसके लिए जितना हो सके हमने बारहा कहा है, आप और मैं बिलखुसूस अल्लाह की किताब को 1 सफ़ा डेली पढ़ना आदत बनाएं, कम अज़ कम। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत को भी मद्देनज़र रखा और कुरान मजीद नमाज के अंदर भी सुने, फिर दिन को भी पढ़े और तर्जमे के साथ भी पूरा कुरान मजीद मुकम्मल किया। लोग मौजूद हैं हमारे अंदर। लेकिन हम 1 सफ़ा रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान मजीद, इसे अपनी आदत बनाएं। और आपके घर के बड़ा होने का फ़ायदा ही ये है। मत मनवाइए, बाकी जगहों पे आप मनवाते हैं अपना आप, मोहब्बत से, प्यार से लेकर के बैठिए, प्यार से लेकर के बैठिए। मुझे याद है, एक इफ्तारी पे जाना हुआ तो मैं जाते हुए कुछ कुरान मजीद साथ ले गया, तो साहब खुश भी हुए और कहा कि मेरी 2 ही बेटियां और उन्होंने सबसे कीमती नुस्खा कुरान मजीद को समझा है, और अल्लाह का शुक्र है वो सिलसिला पढ़ने पढ़ाने वाला। तो आप और मैं किसी को कुरान मजीद ख़रीद के ले दे सकते हैं, उस तक पहुँचें, बात करें, उससे थोड़ा बहुत टेबल टॉक करें और उसको समझाएं। जब तक वो पढ़ेगा उसका भी अजर आपको मिलने वाला है इंशाअल्लाह। ये काम मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने पहले भी बीमारियां आती रही, दुख दर्द आते रहे, वबाएं आती रही, कौम गिड़गिड़ाई, मसाजिद से जुड़ी, सजदों में गई, इबादत में गई, मुनाजात में गई, अकड़ी नहीं, लड़ाई नहीं। कोरोना से लड़ नहीं सकते आप। अगर ये बीमारी है, अगर ये वबा है, अगर ये इब्तिला है, अगर ये सज़ा है, तो फिर सिर्फ इल्तिजा है, सिर्फ आजिज़ी है। और अपने घर में अल्लाह के लिए कुरान मजीद के साथ रसूल सल्लम की हदीस की कोई किताब ज़रूर लाएं, तर्जमे वाली लेके आएँ। सारी दुनिया आपको कहती है गुमराह हो जाओगे। लोगों, ना छोड़िए आप अपना अकीदा, रहिए जहां पे हैं, जान तो सकिए, कम अज कम मौत आए तो जान के तो आए कि दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा क्या था, फरमाया क्या था। कुरान के हामिल थे, तफसीर थी, क्या कर गए, क्या अमल पेश किया है, तर्जमे के साथ घर में। और मुमकिन नहीं सही अल बुखारी रख लें, सही मुस्लिम रख लें, जिसके ऊपर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, सिवाय चंद उन लोगों के जो बेचारे अपने आप को आलिम समझते हैं लेकिन हालात उनके माठे हैं बेचारों के, जिन्हें सिर्फ सस्ती शोहरत चाहिए। वगरना जितनी भी उम्मत के उलमा हैं जो आलिम हैं वो मुत्तफिक है इस बात पे, अस्सहुल किताबी बादा किताबिल्लाह, कुरान मजीद के बाद अगर किसी किताब में गलतियों का कम तरीन इम्कान है और सही तरीन किताब है तो इस रूए ज़मीन के ऊपर इजमाए उम्मत के साथ वो सही अल बुखारी है। हज़रात उसका तर्जमा, और अल्लाह का शुक्र है ऐसी ऐप्स मौजूद हैं, आपको तर्जमे के साथ मिलती हैं, उसको आप देखें, उसको पढ़ें। और इसके साथ मैं पहले भी, हमने जुमू की भी तकसीम की थी, आप अपने असलाफ की ज़िंदगियों का एक वरक, कोई एक कहानी, उनकी दास्तान
नावल भी तो दुनिया पढ़ती है, ड्रामे भी तो सुनती है, रोती है, और उसमें सच और झूठ भी मिक्स होता है, अकीदे की तबाही और बर्बादी के समान भी बसा औकात होते हैं। फिर भी देखना सुनना उसके अंदर जो है चूंकि कुछ और मिक्स होता है जो हमारे मन को अच्छा लग रहा होता है, तो क्यों नहीं वो तारीख के औराक पढ़िए जो सुनहरी हुरूफ है, जो सुनहरी औराक है, जो हमारे असलाफ के, असहाबे रसूल सल्लम के, अहले बैत के, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हमारे जो है वो फुकहा, हमारे मुहद्दिसीन, हमारे उलमा, अहले इल्म, इनकी जिंदगियां कैसी थी, आपको जीने का शऊर आएगा, जीने का शऊर आएगा। और हजरात एक और चीज़ भी ज़रूर पढ़ा करें, एक दूसरे के साथ रहन सहन में अखलाक, मुरव्वत, मवद्दत, मोहब्बत, प्यार, हर वक्त की सख्ती, दूसरे को खा जाना, काट देना, बुरी नज़रों से देखना, हकीर जानना, ये भी वो चीज़ें हैं जिन्होंने हमने लूट रखा है। तो आइए इन अय्याम में अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख के, तकदीर पर यकीन कामिल रख के, अपनी किस्मत को अल्लाह की रहमत समझ के अपने नसीब के लिए तगोदो कीजिए, हुदूद और दायरे और जवाज़ में रह के, और जो कुछ भी है इंशाअल्लाह हमने इसे फेस करना है, फेस करना है। मौत तो लिखी है, लेकिन घबरा के मर जाना ये मर्दानगी नहीं होती। इंसान अल्लाह ताला ने बहुत अक्लमंद बनाया है, समझदार बनाया है, ये हालात को देखता है, ये जायज़ा लेता है, ये मुश्किल और आसान पहलू तलाश करता है। अल्लाह ताला ने इसको बड़े सारे रास्ते दिए हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे साथ अच्छे मुआमले करे और हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना।